Let's see how the ketone will give the reaction with the sodium bisulfite, जो कि मैंने अपने previous video lecture में बताया है कि how the aldehydes are giving the nucleophilic addition reaction with the sodium bisulfite or sodium hydrogen sulfite. So let's see that how the ketone will react. So the reaction of ketones with sodium bisulfite. So the reaction where the ketones react with the sodium bisulfite. And here we will learn one more thing, that the position of equilibrium. What is the meaning of a position of equilibrium? As ketones are having two bulky groups, तो हम लोग यहाँ पे R and it is having attached with the carbonyl carbon. As ketone is a carbonyl organic compound, means having a CO group in it, and these are the two different or same alkyls. What will happen, as we know that the carbonyl जो group है, it is polar in nature. This pi electrons will shift towards the oxygen because oxygen is highly electronegative as compared to carbon. So the pi electron will move towards the oxygen. Pi electron move कर जाएंगे oxygen की तरफ, and this carbon will attain a partial or smallest or positive charge. When a nucleophile will attack on this ketone, then it will feel or it will observe a steric hindrance because two bulky groups are present here. यहाँ पे दो bulky groups हैं, first and second. Due to the steric hindrance, due to the obstacle in the approach, what will happen? These two bulky groups did not or won't let that a nucleophile to attack the electropositive carbon. वो अटैक उसे इजीली करने नहीं देंगे ड्यू टू दी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट विल हैपन, ये जो कार्बन है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेंगे? ड्यू टू दी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे विल सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स टू दी पॉजिटिव कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. वो उसे सप्लाई करेंगे एंड दैट इज वाई जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इट इज नॉट that much easily get chance to attack the electropositive or partially positive carbon. वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा. But as this reaction will happen slowly in the presence of acid or a base, अगर एसिड या बेस की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, then this reaction will occur a little faster as compared to the normal conditions. So हम यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं. What will happen here, as हम यहाँ पे equilibrium position sign बनाएंगे. What is the meaning of this equilibrium? Equilibrium means such reactions where the reaction will occur in both sides. ऐसा reaction जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमने देखना है इक्विलिब्रियम और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वी कैन से अदर वे अराउंड, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही रिएक्शंस में होती हैं. व्हाट विल हैपन देयर इन केस ऑफ कीटोन, द रिएक्शन जो है जितना फॉरवर्ड में चलेगा, अभी प्रोडक्ट पूरा नहीं बनेगा एंड द बैकवर्ड रिएक्शन विल आल्सो स्टार्ट. दिस इज नोन एज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सबसे पहले वैसा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कैसे होते हैं? द रिएक्शन व्हिच आर अकरिंग इन बोथ, दोनों ही. सो हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन को क्या कहेंगे? सच रिएक्शंस, सच रिएक्शन वेयर द फॉरवर्ड and
backward reaction occur simultaneously or reaction occur simultaneously to attain इक्वालिटी मीन्स जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही रिएक्टेंट होगा, बट एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता. द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल एट ऑल द पोजीशन. ऐसा एकदम से नहीं होता, पहले ही हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. इन केस ऑफ कीटोन में व्हाट विल हैपन, हमारा प्रोडक्ट पूरा नहीं बनेगा और रिएक्शन बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस. और स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने अभी बताया, these two bulky groups are not letting this nucleophile to attack the carbonyl carbon easily. Because of positive inductive effect, they supply the electrons to the carbon and this nucleophile not easily attack the carbon. So क्या reaction जो backward हो जाएगा, जितना फॉरवर्ड चल रहा है उतना बैकवर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा. इनफैक्ट कि प्रोडक्ट पूरा बनेगा ही नहीं और रिएक्शन हमारा बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, दैट इज द कार्बन, और दो बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं R और R एपोस्ट्रोफी मींस दे कैन बी सेम, दे कैन नॉट बी सेम. और मैंने यहाँ पे जो हमारा कार्बन है उसके साथ हमने सल्फाइड आयन लगा दिया है एंड वी आर हैविंग OH. ये जो रिएक्शन है इस तरह से चलेगा, बट ये प्रोडक्ट अभी पूरा बनेगा नहीं और जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा. इन सच केस वी विल से कि कीटोन में, स्पेशली इन कीटोन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्योंकि प्रोडक्ट पूरा अभी बनेगा ही नहीं एंड रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. एज आई सेड कि ये जो एडिशन रिएक्शंस है दे आर हैविंग द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन इक्वल पोजीशन. वो बात जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा, बट हमारा प्रोडक्ट पूरा अभी बनेगा ही नहीं और रिएक्शन जो है वो वापस बैक होना स्टार्ट हो जाएगा. इन सच केस इन कीटोन में इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी होती है, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. एंड इन केस ऑफ एल्डिहाइड में क्या है, व्हाट वी आर हैविंग द एल्डिहाइड, ये कीटोन है. कीटोन के लिए इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है दैट इज, और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड दिस इज ड्यू टू दी, किस कारण है, दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस. और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है द ऑब्स्टेकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू बल्की एलिफेटिक ग्रुप्स और एल्काइल ग्रुप्स. स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसा होगा. एंड इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स व्हाट विल हैपन, वी आर हैविंग वन H, एक H रहेगा एंड दैट इज दी R. अगर हम बात करें कीटो एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में एक तरफ पे स्मॉलेस्ट सा H है, इसीलिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है या सोडियम बाइसल्फाइड है वो भी रिएक्शन हमारा बोथ वे है, इट विल मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. बट रिएक्शन बैकवर्ड होना स्टार्ट हो इससे पहले पूरा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एंड द रिएक्शन विल गिव अस, पूरा हमारा प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा. एंड व्हाट वी विल से, रिएक्शन तभी बैक होगा, पहले पूरा प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद वो वापस आना स्टार्ट होगा. तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड में जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज द राइट साइड, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस अवेलेबल नहीं है. सो इफ द क्वेश्चन विल कम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द केस ऑफ कीटोन, दैट इज लेफ्ट साइड due to steric hindrance, and in case of aldehyde it is right side because there is a no two bulky groups or smallest hydrogen present there. इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन जो है पहले आगे चला जाएगा. As in chapter solution we read about the Lee-Chatelier principle कि if we change some external conditions of a reaction then जो बाकी के कंडीशंस है वो उसे अपोज करेंगी टू अटेन द इक्विलिब्रियम.
सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल कि अगर हमारा जो अभी कुछ भी हम चेंज करेंगे, इफ वी आर चेंजिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन केस हमारा जो कीटोन्स है, हमारा रिएक्शन लेफ्ट साइड पे रहेगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इन केस ऑफ एल्डिहाइड इट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर एनी डाउट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।